हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। तो दिस इज माय इनिशिएटिव कि जो भी हमारा महामुकाबला होता है, मतलब क्विज होता है एक तरह से मिक्स्ड क्वेश्चन का 7:30 पे लाइव क्लास में। तो उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका मैं यहाँ पे डिबेट करवाती हूँ। तो वी आर ऑल वेटिंग फॉर देम। और अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं 7:30 पे। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाके लखविंदर कौर अनअकैडमी गूगल पे सर्च कीजिए, या फिर आप एप्लीकेशन अगर आपके पास है अनअकैडमी तो उस पे जाके आप मुझे सर्च कर सकते हैं and you will get a very good score. If you get a very good score, then you will get a chance to be here with me on Zoom. So this time we are waiting for our contestants. तो सभी जो है अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो आई रियली वांट कि जो है ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी और सभी स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड भी हैं। सो लेट्स सी के कैसा डिबेट रहता है। आज का हमारा टॉपिक कोविड-19 के ऊपर है, जो कि करंट टॉपिक है। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं तो उन्हीं के साथ जो है मैं स्टार्ट करूंगी। और अपना इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो माय नेम इज लखविंदर कौर, एज आई ऑलरेडी मेंशन, और मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। मेरे लाइव कोर्सेज चल रहे हैं और 7:30 वाली क्लास में मेरा एक क्विज सेशन होता है जिसमें मैं क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ। तो उसमें जो टॉप 10 रहते हैं, बहुत ही अच्छा हमारा वो सेशन रहता है, क्लास रहता है 1 घंटे का। तो उसमें जो टॉप 10 होते हैं तो उनसे फिर हम यहाँ पे, और वो क्लास बिल्कुल फ्री होती है, तो कोई भी जाके जो है मेरे प्रोफाइल पे उस क्लास को 7:30 पे अटेंड कर सकता है। So we are having 3 students today and we will start with the Chandan and then Nitesh and then Ashmita. One by one they will give us their introduction and then we will put some questions to them and they will give the answers of those questions, right? So yes, Chandan, please start. Maybe Gaurav is there. Markonda. Please wait, Chandan. Yes, Gaurav. Yes, ma'am. Is it audible to you? Yes, ma'am. Okay. Good Your morning. name is Gaurav? Good noon. Good noon. Yes. Good afternoon. It's so. How are you? Okay. So yes, Chandan, please start. Myself Chandan Kumar Konda. I'm from Odisha. I'm preparing for CDS exam. Okay. Yes, Nitesh. Okay, ma'am. Good afternoon. My name is Nitesh Vardhan and I'm from Palampur, Himachal Pradesh. I completed my graduation from Himachal Pradesh University in BCom Professionals, and currently I'm preparing for the CDS FCAT since 2016. Okay. Yes, Ashmita. Good afternoon. My name is Ashmita Mandal. I am from Kolkata, West Bengal. I have completed my engineering from Dehradun in EC, and my hobbies include dancing and singing, and I'm preparing for APCAT and INET and CDS. Okay. And Gaurav, what about you? Myself, Gaurav Galawat from Haryana. Yes. I'm pursuing Masters in English Honors Okay. and also the student of CFI. Okay. So now we'll start with some follow-up questions, right? And the first question is, do you think India is taking good steps for prevention from COVID-19, as the government has locked down and there are some restriction to the people to come outside? So do you think is this a good way? Yes, ma'am. Yes, Chandan, Yes, we ma'am. will start with you. Yes, ma'am. This is good step for lockdown and some prevention. This is not audible to me. Please speak loudly. Ma'am, this is a good step for India. Okay. Anything else you want to explain it? No, ma'am. Yes, Nitesh. Yes, ma'am. Ma'am, it's a good step for the India, which is taken by the Indian government, and mostly because अगर हम दूसरे कंट्रीज से अगर कंपेयर करके देखें तो बाकी कंट्रीज में मैक्सिमम ज्यादा केसेस बन रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, इटली। वहां पर डे बाय डे कैसे बन रहे हैं, क्योंकि वहां पर लॉकडाउन की स्टेज नहीं है। और इंडिया में अभी तक
2 to 23 टेस्ट तो हो ही गए हैं कंप्लीट, एंड यू कैन सी मैक्सिमम केसेस कम हुए हैं। और जैसे कि अगर मैं अपने हिमाचल की बात करूं, और मैं यहाँ पर 21 डेज पहले 2 केसेस थे, और मैं आज पालमपुर में प्लस हिमाचल में 0 केसेस हैं, और मैक्सिमम 65 केसेस आए थे और सारे के सारे नेगेटिव निकले। सो आई कैन से इट्स अ better step. Okay, and yes, Asmita, what about you? I feel that yes, lockdown is definitely a better step towards preventing corona, because while in every country all are preparing for the vaccine and the medicine to cure coronavirus, but our main concern should be like to stop to spread it, right? So if we Okay. stop spreading it, then जितने भी medicines हो रहे हैं वो मतलब effective होंगे। तो हमारा भी concern होना चाहिए कि कैसे उसको हम spread करने से रोक सके। एंड जैसे कि नितेश ने बोला अभी कि मतलब बाकी कंट्रीज से अभी इंडिया का थोड़ा अभी कंट्रोल में है, तो आई टोटली एग्री विद हिम, एंड डेफिनेटली इंडिया इज टेकिंग वेरी गुड स्टेप्स टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। यस। Okay, and yes, Gaurav? Yes, ma'am. As Asmita said, lockdown is a very good step, and it's on time. But the implementation of lockdown is not very good Okay. because there are very much drawbacks in it. The restriction of public transport and everything is not very good for the migrant workers and many others who are in different cities. One more is here. So do you think that lockdown is the only solution? Not only so there are the supply of essential things are not as good as it. Okay. Yes, Ritika, welcome you. And how are you? Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good Ma'am, afternoon. I am fine. How are you? Yeah, I'm also good. Tell me something about yourself. Give your introduction. Ma'am, my name is Ritika. I am doing engineering from MIT Jammu in Okay. electronics and communication with an overall CGPA 7. Okay. And Sneha is also there. Sneha, can you hear me? Sneha, can you hear me? I think network Yes, is ma'am. not. Okay, show me your video. Ma'am, she is not visible. Yeah, she is not visible. She's on standby mode. मुझे So कोई नहीं दिख Ritika, रहा। Ritika, we were doing some discussion on the COVID-19 that do you think India is taking good step for of prevention COVID-19? So what are your views? Yes, ma'am. Yes, explain Yes, it. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, like now the PM Modi has tell us to 7 steps to follow. Yes. Yesterday he tell us to 7 steps to follow. That was a good decision taken by him to prevent COVID-19, which is increasing day by day. Okay. So to keep people in their homes, so to prevent COVID-19, it was a good step which was taken by PM Modi. Okay. Yes, Neha, is it audible to you? Yes, ma'am. Okay, so give me your introduction. Will you not join with the video? मैम वीडियो नहीं हो रहा है, मुझे कोई किसी का वीडियो नहीं दिख रहा है, मुझे मैम काले काले ऐसे एकदम स्नेहा नीचे ना ऑप्शन है वो वीडियो वाला स्टार्ट वीडियो वहां पर क्लिक करो। हाँ शायद she didn't get it, but that's all right. Sneha, you can give your views on India lockdown. Yeah, she get it, I think. मैम मैं अभी आप मुझे बस आप दिख रहे हो अभी। अच्छा, बाकी सब नहीं दिख रहे, चलो मैं दिखनी चाहिए बस। Okay, just is it audible to you now, Sneha? Yes, ma'am. Now she is there. Yeah, welcome Sneha. How are you? Thank you. Firstly, give I'm some good. introduction. Your introduction. Sneha Gaikwad from Mumbai, Maharashtra. Okay. In mechatronics engineering, and now I'm here for like appearing for defense exams.
Okay, कोई नहीं दिख रहा। that's all right. Totally all रितिका right. गई। Is it audible to you now? That is fine. Yes. Okay. So do you think India is taking good steps of prevention from COVID-19? Ma'am, I think, like personally, I think they are lacking in planning. The government has been issuing something and everything, but the execution phase is not nice. Execution is more commanding and Speak proper loudly, please. organizing, because the execution. Mhm. 1 minute. The planning and execution is good. No, the planning is good, but the execution part is lacking, because schemes or plans that have been guaranteed by the government, like giving Yes. food or money to the people, is not up to date, or like not happening simultaneously in everywhere. So people are panicking, especially yes. those below BPL line workers are like The very poor people, you aggravated can say. because of that. Okay. So do you think the lockdown till 3rd May is enough, or should it be extended? Yes, I Chandan. think it will be extended. Please wait. Chandan. We will do one by one. Yes, sir. Okay. Yes, Chandan. We will Yes, start ma'am. with you. And someone who is not comfortable with the English, they can use Hindi. There is no restriction. Yes. Yes, Chandan. Please start. Ma'am? The question is कि lockdown जो है वो 3rd May तक, that is enough, or should it be extended? हमारा नेट क्लियर नहीं है। Then अगर पेशेंट नहीं बढ़ रहे तो ठीक है, लॉकडाउन फुल तक ही अच्छा है। नहीं पेशेंट बढ़ रहे हैं तो एक्सटेंड करना चाहिए। Okay, give some points. मैम लॉकडाउन से तो अच्छा है मैम। It will हमारे affect इंडिया में the तो economy at a very bigger rate. So यस मैम, yes, तो है, Nitesh. बट मैम बड़े बड़े कंट्री में भी इकोनॉमी डाउन हो रहा है मैम, वर्ल्ड में भी तो। Yes. Yes, Nitesh. Yes, ma'am. Ma'am, according to me, lockdown till 3rd May is a good step, because जैसे कि अभी पूरे इंडिया में बताया कि 3rd May तक फिर लॉकडाउन होगा, क्योंकि जैसे दिल्ली एंड मुंबई में आप देख सकते हैं डे बाय डे 100+ केसेस आ रहे हैं, एंड यू कैन सी कि कोई पता नहीं लग रहा कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे। कुछ बोल रहे जमाती आ रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रीज आ रहे हैं, कोई बोल नहीं सकते। पर जैसे कि अगर मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 0 केसेस है। तो यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट ने कल एक डिसीजन लिया था कि हम कोई डिस्ट्रिक्ट को हम खोल देंगे जहाँ पे बिल्कुल 0 केसेस हैं। बट जहाँ पे ज्यादा होने की आशंका है, जैसे आप ले सकते हैं ऊना में होने की ज्यादा केसेस हैं, तो वहां पर अभी भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। पर इससे क्या होगा, इकोनॉमी तो गिरेगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 चली हुई एक तरह से। क्योंकि चाइना ने जो किया वो तो चलो पूरे दुनिया को तो तहस नहस करके रख दिया, पर ये कि आप अपने ऊपर है कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें। Okay. Yes, ma'am. Yes, Asmita, what about you? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर सिचुएशन कंट्रोल में होगा, अगर डेथ्स जो Do you think कि ऊपर जा 0 रहा हो है जाएगा, कोई भी केसेस नहीं रहेंगे 3rd May तक? नहीं मैम, ऐसा एग्जैक्टली अभी तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जो मतलब वो मेडिसिन बना रहे हैं कंट्रोल में आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम केसेस 0 हो जाएंगे, बट ये लॉकडाउन डिपेंड करता है कि मतलब कितने केसेस बन रहे हैं। जैसे कि पीएम मोदी जी ने बोला कि 20 अप्रैल को वो जांच करेंगे हॉटस्पॉट जहाँ पे ये सब ज्यादा हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बस अगर सही रहा तो 3rd में, अगर नहीं तो वो और एक्सटेंड हो सकता है। तो करना चाहिए गवर्नमेंट को ऐसा? करना चाहिए। Yes, Gaurav.
मैम मेरे हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोरोना वायरस का, क्योंकि वी आर नॉट अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ सप्लाई, वी आर बिग इम्पोर्टर। तो जैसे चंदन ने बताया कि बड़ी बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी हिट हो रही है, तो उसका मेन कारण यही है कि वो उनका जो कंट्रीज है वो बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं और इसलिए उनकी इकोनॉमी ज़्यादा हिट होगी। इंडिया की तो पहले ही 4% पे आ चुकी थी, तो कोरोना क्या हिट करेगा। और मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ भारत की इकोनॉमी। ओके, यस नेहा। बट माय नॉलेज। मैं गौरव की बात से एग्री नहीं करती, बिकॉज भले ही हम इकोनॉमी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे ही इकोनॉमी में भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। भले ही हम वॉइस बड़े बड़े वॉइस प्लीज नहीं आ इंक्रीज रहा योर वॉइस। मैं बोल रही हूँ हाँ, यस। इकोनॉमी एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो इकोनॉमी इफेक्ट नहीं होगा ऐसा नहीं है, बिकॉज एमएसएमई सेक्टर्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं सब है, उनका तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भी, तो वो बंद है ना, बिकॉज उनके पास कोई इकोनॉमिक बैकअप नहीं है। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है रिलायंस एंड ऑल, उनके पास बैकअप होगा, तो फाइनेंशियल बैकअप होगा उनके पास, ताकि 6 मंथ्स वो लोग चल। आई थिंक एमएसएमई सेक्टर्स है उनके पास कुछ ऐसे बैकअप्स नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा सफर करेंगे। और आई थिंक जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं उनकी वजह से ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद भी हो सकते हैं, बिकॉज वो सफर उतना इकोनॉमिक लॉस नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा ही, बिकॉज पहले ही इंडिया का प्रेडिक्टेड इकोनॉमी वाज 5.1 कुछ, बट अभी वो 2.1 कुछ हो गया है। मतलब कोरोना हिट भी नहीं किया प्रॉपरली, स्टिल हमारा इतना कम हो गया है, तो आगे वाले फाइनेंशियल ईयर में तो और कम हो सकता है। Yes, anybody want to say anything on this? यस मैम। मैम जैसे कि इकोनॉमी का स्नेहा जी ने बताया, आई टोटली एग्री विद हर, बट मेनली जैसे इकोनॉमी तो पूरे वर्ल्ड की गिरेगी अब, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट मंथ पढ़ा था कि 6.1 से 5.1 रह जाएगी अब इंडियन इकोनॉमी प्रेडिक्शन से। अब और जैसे कि कोरोना वायरस आ चुका है, तो उससे तो 5.1 से भी और नीचे गिरेगी, क्योंकि पैसे की कमी हो रही है, एक तरह से पूरी तरह से मनी सर्कुलेट नहीं होगा, चीज़ों की कमी हो रही है, लोगों सर्कुलेशन तक में तो खाना नहीं पहुंच रहा है। इफेक्ट पड़ेगा। यस मैम, क्योंकि जैसे कि बीपीएल के अंडर जो लोग आते हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने खुद देखा उनको, वो खुद राशन की दुकान में जाते हैं बट उनको मिल ही नहीं रहा है। उनको डेली बोलते हैं कि आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ एक स्टेट की नहीं पूरी कंट्री में ये हो रहा है, और इवन आई कैन से पूरे वर्ल्ड में भी यही हो रहा होगा। सो व्हाट विल वी डू? क्योंकि ओके, मेडिसिन तो बन रहे हैं, उसमें कोई फिक्र नहीं है, मेडिसिन बन अभी रही कोई हैं, पर्टिकुलर डेली लोग वैक्सीन तो ठीक भी हो इसके रहे लिए हैं। नहीं हुआ है, तो सबसे ज्यादा मेडिसिन यही है डिपेंड कि करेगा। यस। मैम बट तो भी एक तरह से मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि वैक्सीन तो चलो वो बना रहे हैं, पर जैसे जैसे बाकी लोग ठीक हो रहे हैं, अभी तक 200 हुए हैं नहीं हुए हैं, पर जितने ठीक हुए हैं कम से कम हुए तो हैं ठीक, पर ये कि उन तक तो भी कैसे पहुंच रहा है वायरस। डेली अगर अभी भी न्यूज खोल के देखें तो भी 100+ आ रहे हैं, 60+ आ रहे हैं, इस सिटी में, उस स्टेट में 70 आ जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? बिकॉज सबको वो चेन नहीं वो मानते हैं। चेन बन रहा है ना, वो उसकी वजह से आगे यस मैम, स्प्रेड हो रहा है। मैं वो चेन इसलिए बन रही क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट वीक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि नेपाल में मैक्सिमम 200 पाकिस्तानीज हैं जो कोरोना वायरस इफेक्टेड है, और मैं वो गोलियां होती थी वो खाकर अपना थोड़ा टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ताकि जब वो बॉर्डर क्रॉस करें तो उनका टेम्परेचर नॉर्मल लगे, और मैं 50 तक हाँ, तो यस, वैसे ही दिस हैपन उधर कि जो से आ चुके फॉरेनर्स है, थे। मैंने भी स्टेटमेंट सुना है इनफैक्ट, मतलब बहुत ही रिलेटिव्स जो है हमारे, तो दिस साइड की लोग क्या कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे आके कोई मेडिसिन ऐसा ले लेते हैं सो दैट कि टेम्परेचर उनका शो ही ना हो, आफ्टर 2 और 3 आवर्स यस का मैम, अगर उनका ट्रैवल टाइम रहता है तो उसमें वो शो ही ना हो। यस मैम। ये सब चीजें तो इफेक्ट हो रही है। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज कि आफ्टर कोविड-19, चलो ये तो हो गया, अब ये अगर आया है सिचुएशन तो ये खत्म तो होगा ही डेफिनेटली। तो इसके यस मैम, बाद लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि कैसा लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो जाएगा? यस चंदन। ऐसा लगता है मैम, लोगों का जो बाहर घूमना थोड़ा कम हो जाएगा, और
लोग थोड़ा लाइफस्टाइल तो बहुत चेंज होगा। 21 दिन मतलब 1 मंथ घर में बैठ के रहते हैं, तो 21 दिन में कुछ भी आदत हो सकता है मैम, सब चेंज हो सकता है। Okay, yes, Nitesh. यस मैम, इट विल अफेक्ट आफ्टर कोविड-19 बिकॉज क्योंकि मैम अभी आप देख सकते हो जैसे लोग सब्जी लेने जा रहे हैं या कोई भी सामान लेने जा रहे हैं, जैसे कि मेरी मैम एक अभी ड्यूटी लगी है बैंक में, तो वहाँ पर लोग पैसे निकालने आते हैं, पैसे जमा कराने, तो वहाँ पर बहुत सारे मास्क लगा कर आ रहे हैं और ऐसे दूर दूर खड़े हो रहे, बिल्कुल वहाँ पे छींक भी दे कोई तो ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे कि पता नहीं इसे ही वायरस हो चुका है। तो आई कैन से कि कोविड-19 के बाद तो लोग किसी के पास तो जाना बिल्कुल प्रेफर ही नहीं करेंगे। अकेले रहना वो ज्यादा अगर प्रेफर करेंगे। यस मैम, यस मैम, Okay. क्योंकि Yes, मैम अभी अस्मिता? जैसे अभी सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो कोविड-19 खत्म होने के बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, सबसे पहले 1 हफ्ता तो एटलीस्ट लोग अपने शौक पूरा करेंगे। बाहर जाना, खाना खाना, पहले तो लोग पहले ये करेंगे। फिर 1 हफ्ते बाद जो होगा, दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये सब मतलब कुछ नहीं रखा है इसमें, जो हम लाइफस्टाइल जी रहे थे वही कंटिन्यू लॉकडाउन के करेंगे। टाइम में, वैसे हम रह सकते हैं। हाँ, इससे सेविंग भी होगा, टोटली अपना अफेक्टेड। टाइम स्पेंड भी होगा फैमिली के साथ। दे विल रियलाइज कि ये इतना बुरा भी नहीं है लॉकडाउन जितना लोग बना रहे हैं इसको। नहीं, मतलब आफ्टर लॉकडाउन, चलो लॉकडाउन तो खत्म हो गया, तो उसके बाद लोगों को चेंजेस क्या आएंगे लाइफ में? ऐसे अकेले रहना मैम उनको अच्छा लगने लगेगा? डू यू थिंक सो? आई वांट टू से मैम समथिंग। अब 1 Yes, महीने तक please say. अगर रह रहे, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आ ही जाएगा ना कि हाँ मुझे आइसोलेशन पसंद है, मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद है, तो थोड़ा बहुत उनको होगा कि हाँ मुझे अकेले रहना है, थोड़ा माइंड पीस चाहिए, ऐसा टाइप। And yes, Gaurav, please say. मैम मेरे हिसाब से इंडिया जैसी कंट्री में कोई ज्यादा बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। एक बार Okay. जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तब वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। और लॉकडाउन में देख लो वेजिटेबल मार्केट हो या ग्रेन मार्केट हो, वैसे ही भीड़ लगी पड़ी है। कोई वैसे जो ये मतलब आपको लग रहा है कि बोला कोई था इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे? गौरव के नहीं हिसाब पड़ने से वाला किसी वो। चीज का जैसे असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश ने मैम बोला लोग जैसे खुश हो जाएंगे। चीन कैसे बढ़ रही है, तो भाई वेजिटेबल मार्केट और वहाँ पे जाके देख चाइनीज चीजें बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे अब भी इतनी भीड़ है जितनी पहले होती थी, कोई ज्यादा फर्क नहीं। Okay. Yes, नेहा? मैम लोगों की लाइफस्टाइल पे फर्क, मतलब आई थिंक ज्यादा पर्सनली हाइजीनिक हो जाएंगे लोग। इधर उधर स्पिट करना, इधर उधर टच करना, वो सब हैबिट्स थोड़ा कंट्रोल में ले लेंगे। बाकी तो इंडियंस को कोई रोक नहीं सकता मिलने जुलने से, तो वो अलग ही इशू है। एंड अभी फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो फेस्टिवल अभी गणपति आएगा, ये सब आएगा, तो हम बोल तो नहीं सकते लोगों को रुकने के लिए। बट आई थिंक पर्सनली जो चीज होगा वो होगा हाइजीनिक हो जाएंगे, थोड़ा खुद gloves का डाल ध्यान के और जरा देखने को सराउंडिंग्स मिलेंगे का ध्यान लोग। रखना स्टार्ट करें। Yes. हाँ Yes, लोग तो हाँ, Ritika, वैसे भी चलो। नहीं do you मानते want हैं। to say anything? I think she's not. Yes, Nitesh, what do you want to say? यस मैम, जैसे कि अभी स्नेहा ने बताया कि लोग तो भी बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, वो तो रुकेंगे ही नहीं। क्योंकि मैम अगर आप लॉकडाउन की स्टेज में ले लो, लोग वैसे भी नहीं मान रहे हैं, वो बस निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो बस बोल रहे हैं कि बस पुलिस ने किया है, चलो देखते हैं, हम तो जाएंगे भाई जाएंगे। और खुद भी सिचुएशन क्रिएट करके दूसरे के लिए भी वैसी सिचुएशन क्रिएट करके चले जाते हैं। क्योंकि जैसे मैं पुलिस को वो कर पालनपुर में रहे भी, हैं, यस मैम, डॉक्टर्स को तंग कर मैं रहे हैं। वैसे यस मैम, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं उसमें एक लेडी डॉक्टर थी, तो मैं उसको अपने घर में ऐसे बंद करके रखती होता कि आप बस बाहर जाओ ना, और मैं उसको पूरी तरह से मार पीट रहे थे कि आप जाओ ना, कि अगर आप गए तो फिर अंदर मत आना, आपको फिर वायरस हो जाएगा, ये सब। हाँ, वही बहुत ही वही बुरी एक है मैम। इफेक्ट आता है ना कि बाकी सब कंट्रीज ना बहुत डिसिप्लिन्ड है। अगर उनको बोल दिया ना लॉकडाउन यस है, मैम, तो दे विल नॉट कम आउट ऑफ देयर होम। जो भी घर पे होगा तो वो घर पे रहेंगे। बट यस इंडिया मैम, में वही बुरा बोल लगा दिया था मुझे। लॉकडाउन है, वो ज्यादा बाहर आके देखेंगे कि क्या हो गया ये। यस मैं जैसे कि अभी लास्ट वीक संडे को मोदी जी ने बोला था कि घर में सभी लोग 9 बजे अपने घरों में दिया जलाएंगे या टॉर्च जलाएंगे, तो लोगों ने उसका उल्टा समझ लिया और सब लोगों ने अपने घर में दिवाली पटाखे बना जला ली। लिए। यस मैम, और मैं उसका 2 वीक से पटाखे डिमेरिट क्या हुआ, दिल्ली में एक घर में उन्होंने अपने घर को ही जला लिया। Yes, वो Asmita, राजस्थान what में was था, you की saying? बात होगी। हाँ, yes. राजस्थान की बात। Yes, Gaurav.
क्या तो कह रहे हो? घर जलाने की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में था। अच्छा, यस उन्होंने अस्मिता। उससे हाँ पहले हाँ वो कंप्लीट थाली वाला टास्क करो। हुआ था, उसमें लेके रोड पे निकल गया, तो झूम लेके तो वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया लॉकडाउन के बाद तो फिर देख ही सकते। था। ओके, यस अस्मिता, व्हाट यू वर सेइंग? मैं वही बोल रही थी कि वो लाइट जलाने यहाँ वाले पे ये टास्क में बहुत यहाँ पे ज्यादा लोग पटाखे ये है फोड़- कि अगर डिसिप्लिन वे में हमारी चीजें नहीं है, अगर हम कुछ प्लानिंग भी, गवर्नमेंट ने प्लानिंग नहीं किया इनिशियली, इसको एकदम से ही लॉकडाउन कर लिया, तो उससे देखो कितना इम्पैक्ट पड़ा। हम सब न्यूज देखते थे, हमें तो पता होता था है ना चीजों का। अब जैसे जिन्होंने प्लान किया तो उनके लिए कितना बड़ा इशू बन गया कि वो घर की तरफ जाने लगे। और ऑब्वियस है कि हम भी अगर होते तो हम भी यही सोचते ना कि अगर इतना टाइम रहेगा तो हम फैमिली में जाएं तो वो ज्यादा सेफ होगा, लेकिन उनको नहीं पता कि ये कितना सेफ है कितना अनसेफ है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यस चंदन, वी विल स्टार्ट विद यू। मैम बहुत अच्छा, टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए तो सारा दिन तो घर में बैठ कर कोई भी कोर्स कंप्लीट कर सकता है घर में बैठ। ओके, स्टूडेंट के लिए तो अच्छा है मैम। गुड और बैड दोनों इम्पैक्ट बट बताने। जो स्कूल जाते हैं ना उनके लिए थोड़ा इफेक्टेड है, उनके स्कूल बंद है ना इसलिए शायद। और कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो अच्छा ही है। हाँ यस नितेश। यस मैम। मैम स्टूडेंट लाइफ में इस कोविड-19 का मैम गुड और बैड दोनों का इफेक्ट है। पहले गुड इफेक्ट इसलिए होगा जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, जैसे वी आर स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिविल सर्विसेज एंड अदर एग्जामिनेशंस आल्सो, so you can see we have a lot of time to prepare for our exams, but you can see जैसे कि स्कूल के बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा उनको नहीं इतना मन लगता, उनको बस ये पहले चीज चाहिए होती कि हमें खेलना है या हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है और सामने लोगों के साथ मिलना जुलना खेलना ये सब, क्योंकि उनको तो डेली तो घर में रोज होमवर्क आ रहे हैं, बट ये कि कहीं ना कहीं उसका उनका फिजिकल ग्रोथ से थोड़ा कम हो जाएगा। ये मेरा पहला they पॉइंट are है। spending their time with mobile phones. Yes Asmita, what do यस you want मैम। to say? What are the good and the मैम bad effect of this on students मैम life? एक्चुअली स्टूडेंट्स हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करेगा। लाइक जो एकदम बच्चे हैं जो किंडरगार्टन या फिर 8th तक है, उनको गवर्नमेंट ऐसे ही पास करा दे रहे हैं तो उनको इतना टेंशन नहीं है। अब जैसे मेरा भाई है वो 12th में है, उसका एक एग्जाम रुक गया है, कॉलेजेस एडमिशन हो नहीं रहे तो वो उसमें पोस्टपोन हो जा रहा है। ये बैड पॉइंट्स हैं। गुड पॉइंट्स लाइक आप सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो, खुद पढ़ाई कर उनको सकते टाइम हो, मिल खुद गया की जो सोचने का। बच्चे हाँ जो खुद कॉलेजेस में भी जो बच्चे बोलते रहते टाइम नहीं मिल ये करने का, इतने असाइनमेंट्स है, इतने वो है, वो तुम खुद अपनी इंटरेस्ट अभी कर सकते हो, जो तुम्हें इंटरेस्ट है वो सब एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बहुत डेफिनेटली टाइम उनको मिल एक रहा तरह है। से टाइम मिल गया। हाँ तो यही है कि मतलब गुड में कि तुम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत ज्यादा बहुत टाइम है। बैड में कि मतलब अभी पोस्टपोन हो जा रहा है सब कुछ। ओके, यस गौरव, व्हाट यू वांट टू से? मैम जैसे जो हम जैसे बच्चे हैं उन पर तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास एक सोर्स पढ़ने का है और हमारा तो है ही जो ऑनलाइन स्टडी है, हम पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट उन पर पड़ेगा। और जो मेनली तो उन्हीं पर पड़ेगा जो जिनको पढ़ना ही नहीं है, तो उनको कुछ भी कर दो, स्कूल में जाके भी नहीं पढ़ते, ऑनलाइन मोबाइल होगा तो उसमें भी खेलते रहेंगे, उन पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, पड़ेगा उन पे आपको जो नहीं पढ़ने लगता वाले कि बच्चे हैं बच्चे उनके इस पास सोर्स नहीं है। चीज से बहुत टेंस्ड होंगे कि ये क्या हो रहा है, यस मैम। हमारी स्टडी या रुक जाएगी? डू यू थिंक सो? No, यस ma'am. मैम। No, ma'am. नो मैम, बच्चे बहुत खुश हैं। क्योंकि सारा दिन तो टीवी ज्यादा देखते तो रहते मैं हैं लोगों को पता नहीं, पर ये कि मेरा भाई तो बड़ा टेंस्ड है, क्योंकि अभी उसकी उसने अभी 10th के पेपर दिए हैं। मैं वो डेली पूछता है मैं भैया क्या करूं, क्या सब्जेक्ट लूं, नॉन मेडिकल लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, तो उनको टाइम ही मिल इज गया वेरी सोचने टेंस्ड। का। यस रितिका, व्हाट यू वर सेइंग? No, ma'am. मतलब मैम उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जैसे मतलब हम जैसे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बहुत सारा टाइम मिल गया प्रिपेयर करने के लिए। जैसे हम करें तो हमें काफी ज्यादा टाइम मिल गया। और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनको उनकी बिल्कुल स्टडीज ही रुक गई हुई है। वो मतलब उनको 6 months अब मतलब
2-3 months बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। एंड डू यू थिंक कि जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ऑलमोस्ट सभी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आईटी वाले तो स्पेशली, एंड बहुत ही Yes, कम ma'am. ऐसे हैं, मतलब 30 to 40% जिनको अभी बाहर जाने की जरूरत है, अदरवाइज ऑल आर कैसे भी करके सब एडजस्ट कर रहे हैं ना, मीटिंग्स कर रहे हैं ऑनलाइन Yes. ये सब। तो डू यू थिंक कि Yes, उनको ma'am. वर्क फ्रॉम होम ही होना चाहिए, उनको जाने की अगर ऑफिस जरूरत नहीं है तो इट शुड बी कंटिन्यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अगर जैसे कि आईटी कंपनी से लो और जैसे मल्टीनेशनल कंपनी से लो, उनका मैक्सिमम काम तो कंप्यूटर्स में ही चलता है, तो वहाँ ऑफिस में क्यों जाना जब आप सारा काम घर में ही कर सकते हो। और जैसे कि अगर जैसे मीटिंग्स होती हैं कहीं भी जाकर, तो वो भी क्यों करनी, वो सारे जैसे आप अभी यहाँ पर मीटिंग करिए वैसे मीटिंग करो आप। ओके, यस अश्मिता। मैम नहीं, वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आती है वर्क फ्रॉम होम में भी। लाइक अगर कंसल्ट करना होता है तो हमेशा जो जिसको कंसल्ट करना होता है वो फोन पे अवेलेबल नहीं होता, मीटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है, तो काम रुक जाता है उस टाइम पे। तो मुझे तो नहीं लगता है इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, एंड यस गौरव, व्हाट आर योर सजेशंस? I had an interview of Infosys CEO on 1st of March। तो उसने बताया था कि ड्रॉबैक्स क्या है, जो प्राइवेसी इशू होता है कंपनीज का, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपना ऐसे शेयर नहीं कर सकते, जैसे एम्प्लॉय जो घर पे वो उनके पर्सनल पीसी में रहता है, जो मशीन होती है उसमें, और उसी से कंट्रोल कर सकते हैं वहीं पे जाके, जो उनका अलग से पासवर्ड होता है जो वो भी होता है। बिल्कुल और बिल्कुल, सो ऐसे किसी चीज की प्राइवेसी नहीं रहेगी। कंपनी नहीं चाहेंगे कि हमको किसी ऐसे कोई अपना डाटा लीक करें किसी के भी ऐसी चीज के लिए, वरना उनको कोई जरूरत नहीं है इतने बड़े बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बना के एम्प्लॉयज को वहां बुलाएं। और ओके, एंड यस चंदन। आईटी कंपनी के अगर बस काम अर्जेंट है तो जाना चाहिए, वरना आपको हम ठीक है। अगर कोई अर्जेंट काम है देन यू शुड गो, अदरवाइज यू शुड कंटिन्यू विद द वर्क फ्रॉम होम। यस नेहा, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस, दैट वर्क फ्रॉम होम शुड बी कंटिन्यूड? अगर सभी आईटीज कंपनी एंड ऑल दैट सब कर सकते हैं घर से तो इट शुड बी कंटिन्यूड? नो मैम, एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम का आई डोंट थिंक वो कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक प्रॉपर डेकोरम होता है, किसी भी ऑफिस की, इस तरह से आना है, इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, टाइमिंग्स होता है, प्रोसीजर होता है, आप सीनियर फिर बता सकते हैं, काम होता है। बट अगर सब घर से काम करेंगे, घर की ईज से काम करेंगे, देन एवरीथिंग सब लोग लाइटली लेना स्टार्ट कर देंगे, चीजों को, हो जाएगा, कर लेंगे। और स्पेशली ये चीज होता है प्रोडक्टिविटी कम होगी इससे। हाँ, प्रोडक्टिविटी कम होगी, बिकॉज फिर वापस सब एक्सपेक्ट करेंगे अगर कि अभी घर का भी देखना है, इधर का भी देखना है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता ही रहता है हमेशा। डिस्ट्रैक्शन होगा उनका घर पे काम करने के लिए, ऑब्वियस है ये चीजें होती हैं। और प्रोसीजर प्रॉपर की होता है ना, कि फाइलिंग होता है, देन सिग्नेचर होता है, एक प्रॉपर कोड होता है ऑफिस में, वो घर से सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका ये पड़ेगा कि वर्चुअल रियलिटी हो जाएगी, मतलब क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हर एक जितने भी आईटीज कंपनीज हैं तो उसमें मैक्सिमम 8 to 9 आवर्स का तो रहता ही है वर्किंग आवर्स, तो वो उतना टाइम तो उसी चीज के साथ स्टिक रहेंगे, तो बाहर वाली दुनिया से उनका कनेक्शन बिल्कुल कट हो जाएगा, तो वो एक उनकी सोच भी लिमिटेड रह जाएगी, वो सब एक लिमिटेड दायरे में रह जाएंगे। तो आई थिंक सो। वैसे हमारा अनअकैडमी भी ऑफ कोर्स वर्क फ्रॉम होम ही है, बट हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है सभी के साथ, क्योंकि हमारे तो क्लासेस है, बट आईटी में ऐसा नहीं होता। इफ यू वांट सम इंफॉर्मेशन तभी आप इंटरेक्ट करोगे किसी के साथ। But Unacademy is a good platform, I must say. Okay. Yes, Neha, complete your sentence. May continue. मैं बोल रही थी, जो आपने बोला ना 8 to 9 आवर्स का फ्लेक्सिबल टाइम होता है ऑफिस का, वो उसमें घर में फॉलो नहीं होगा। घर में आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग आप 24 आवर्स रहते हो, तो आप कभी भी अवेलेबल होगे किसी भी चीज के लिए, वेरएस ऑफिस में एक फिक्स
वो शेड्यूल होता है कि हाँ 8 कि to आपको 9 करना ही काम होगा, बट सपोज लंच के टाइम लंच होगा, कोई नहीं सीनियर तो घर पे पूरा टाइम लंच चलेगा। हाँ हाँ, फिर नहीं डेली के वैसे नहीं मैम, अगर सपोज आफ्टर 10 आप काम नहीं करते हो, आप ऑफिस निकल जाते हो, तो कोई आपको ऑफिस का काम नहीं देता है घर पे कि ये फाइल करके दे दो, बट अगर आप घर में रहते हो, आपको कोई भी सीनियर आपका कॉल करके पूछता है अभी 10 बज रहे हैं, जरा सा फाइल कंप्लीट करके दे दो, 12 बजे तक चाहिए, तो वो एक प्रॉपर वर्क लाइफ डिसिप्लिन वे में नहीं होगा सब कुछ अगर ऐसा हो गया। हाँ। Yes, anybody else? Yes, Gaurav, Ashmita, you want to say anything on this? मैम ऊपर से जब ऑफिस जाने का मन भी नहीं होता है तब भी ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन घर पे ऐसा होता है आप बहाने मार देते हो कि वाईफाई नहीं चल रहा है, फोन कनेक्शन नहीं है। अच्छा, ये अश्मिता को लगता है, अगर सच में कनेक्शन नहीं है तो फिर नहीं मैम, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब काम मन करने नहीं का होगा मन हमारा काम करने का, बोल देते हो कि नहीं अभी अभी वाईफाई नहीं चल रहा है मेरा। that is true. I guess Gaurav, you want to say anything? यस मैम, मैं इस चीज पे बोलना चाहूँगा, जो ये आज 12,000 के लगभग केस हुए हमारे, तो इसके पीछे गलतियां क्या रही हैं गवर्नमेंट की। ओके 30 जैन को हमारा पहला केस आया था कोविड-19 का। ओके तो उससे 17 जन से गवर्नमेंट ने स्क्रीनिंग शुरू की थी, वो ओनली फॉर चाइनीज, जो चाइनीज टूरिस्ट से चाइना से आ रहे थे, केवल उनके लिए की थी वो। और उसके बाद 4 तारीख को गवर्नमेंट उसने पेंडेमिक घोषित कर दिया WHO ने कि ये वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक फैल चुकी है। उसके बाद से सबकी स्क्रीनिंग शुरू होने चालू हुई थी, और उसके बाद भी केवल स्क्रीनिंग पे ही रुकी सरकार। जो आइसोलेशन और जो क्वारंटाइन वो थी उन पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो खुले घूम रहे थे, सब ऐसे वहां से आ रहे थे, वो अब डिस्प्रिन कोई ऐसी टैबलेट लेके भी आगे खुले घूम रहे थे, स्क्रीनिंग से बच जाते थे। और जैसे उनको, जैसे वो जो सिंगर है उनका केस हुआ था कि उनको बोला कि आपको क्वारंटीन करना है, कनिका कपूर का, तो उनको बोला कि क्वारंटीन करना है, लेकिन उन्होंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। अगर वो सीरियस नहीं ले रहे हैं तो बाकी लोग देखो कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया होगा। यस मैम, बट उनकी भी ज्यादा गलती नहीं थी, जैसे कि लोगों ने कर दिया मैम, लोगों ने बिना फालतू के मैम यूपी में उनके अगेंस्ट FIR कर दी मैम, उससे उसका क्या फायदा होगा मैम? अगर वो ठीक हो गए अब तो मैं उन पर फालतू केस चला के क्या फायदा? हाँ यस गलती हुई है। हाँ जैसे उसके बाद जो 15 टूरिस्ट थे इटली से आए, उसके बाद ये शुरू किया था, स्क्रीनिंग शुरू की थी। और उसके बाद जो ये 1900 मौलाना आए थे, ये कोई नया नहीं था कि पहली बार आए हैं, हर साल आते थे भारत में, महाराष्ट्र और दिल्ली में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको कोई परमिशन नहीं दी वहाँ पे इकट्ठा होने की, तो दिल्ली पुलिस ने क्यों दी? सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये है कि दिल्ली पुलिस ने क्यों उनको अलाउ किया? और उनको वहीं पे क्वारंटाइन कर देना चाहिए था, उनको वहां से अलग अलग प्लेसेस पे नहीं भेजना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कोई जानबूझ के लेके आ रहा है, जो ये तो कोई 800-900 के करीब केस है, जो बाकी 2,500-3,000 केस हैं, वो कोई इनसे रिलेटेड नहीं है कि वो कोरोना फैलाने के लिए कोई 1-2 ही लेके आया होगा, उससे फैल गई इतने दिन ये साथ रहे, जो निजामुद्दीन की जो बात है। और उसके बाद भी 13 से 15 इनकी वो चली, उसके बाद गैदरिंग बंद कर दी केजरीवाल सरकार ने। उसके बाद भी 8 दिन नोटिस देने के बाद वो खाली नहीं करवाया गया। ये सबसे बड़ा 8 दिन वेट क्यों किया गया? तो सबसे बड़ा यहाँ से उसके बाद भी उनको क्यों भेजा गया अलग अलग प्लेसेस पे? और एक जो इतने बड़े लेवल पे जो सामने नहीं आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि टेस्टिंग रेट इतनी अच्छी नहीं है भारत में। हाँ, टेस्टिंग कम हो रही है, राइट। केरला का छोड़ के, केरला भी 10 लाख पे, वो भी कुल 400 पे ही, और बाकी का तो हम देख सकते हैं वो कहाँ पे होंगे। हाँ यस, इतनी ज्यादा टेस्टिंग होती तो केस और ज्यादा आएंगे सामने अभी। हाँ, अगर टेस्टिंग बढ़ जाए। यस नीतीश, जैसे कि अभी DRDO एंड इसरो ये लोग बना रहे हैं टेस्टिंग प्रोडक्ट, जैसे कि जीके में आ रहा है कि DRDO ने हैंड सैनिटाइजर एंड और भी चीजें बनाई जिससे कि हम अपने आप को इस वायरस से प्रिवेंट कर सके। और सिंपल सी बात है, अभी तो सबसे ज्यादा काम पुलिस वालों का है, क्योंकि उनको पास यहाँ पहरा देना पड़ रहा है 12 आवर्स की शिफ्टिंग देकर, क्योंकि बिल्कुल लोग नहीं मान रहे हैं। क्योंकि कहीं
लोग कहीं भी कैसे भी घुस जा रहे हैं, और फिर मैं उनको पुलिस वालों को उल्टा धमकियां दे रहे हैं कि हम आप पर थूक देंगे, फिर आपको भी वायरस होगा, आप हमारा जो करना है उखाड़ लो कुछ। मैं ऐसे ऐसे करके क्या फायदा। मैं जैसे कि अभी रिसेंटली अभी हुआ कि पटियाला में एक कांस्टेबल का हाथ काट दिया, मैं वो उसका क्या फायदा, और उनको फालतू में इसलिए काट दिया क्योंकि मैं वो सिर्फ पहरा दे रहे हैं, इसके लिए वो उसका हाथ काट दिया। मैं वो सबसे शर्मनाक बात होगी इंडिया के लिए। ओके, यस अस्मिता, यू वांट टू से? हां, यस यस। मुझे सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया? यस नेहा, यू वांट टू से एनीथिंग ऑन दिस? क्वेश्चन कोई नहीं था मैडम, अपने पर्सनल व्यू रखिए। ऐसे ही डिबेट चल रहा था, ऐसा क्वेश्चन पर्टिकुलर तो कोई नहीं था। नहीं, ये जो कोरोना वायरस का आप अभी बोल रहे थे कि लैक ऑफ प्लानिंग था एंड एवरीथिंग था, बट फिर गवर्नमेंट के लिए वो अभी बहुत मुश्किल, बिकॉज ये आया अचानक से लोगों का, जो जैसे गौरव वॉइस नहीं आ रहा है आपका। बस चाइना नहीं, गौरव ने जैसे गौरव ढीला रहा, गौरव ने जैसे बोला कि बस चाइना वालों ने नहीं, रुको पहले, चाइना वालों का ही बस हमने ट्रैवलर किया, नहीं चाइना वाले ट्रैवलर को ही हमने बस पहले पिन आउट किया या फिर पॉइंट आउट निकाला उनको, बिकॉज हमको इंडियन गवर्नमेंट को पहले लगा बस चाइना में ही होगा, हमने दूसरे सिटीजन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, फिर जो दूसरे जगहों से आए नहीं दिया। केरला में भी जो फर्स्ट केस हुआ वो इटली से आए थे, ना कि चाइना से आए थे, तो ये एक था कि पक्का बोल सकते हैं उन्होंने मिस आउट कर दिया वो पूरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, बट उनका भी कोई गलती नहीं था, बिकॉज सबका ध्यान। हाँ, फिर धीरे धीरे इटली को रिस्ट्रिक्ट किया, मतलब सभी कंट्रीज को नहीं किया, धीरे धीरे जैसे जैसे जिस कंट्री से लोगों के केस आते रहे वहां पे करते रहे। हाँ यस गौरव, व्हाट यू वांट टू से? जैसे सने बोल रही थी कि एकदम से आया, भारत के लिए एकदम से बिल्कुल भी नहीं था। भारत में जो 31 दिसंबर 2019 का पहला केस आया था, उसके बाद इतने बड़े लेवल पर जन में चाइना में फैला, और उसके 3 महीने बाद से इतने ज्यादा पेशेंट आने लगे मार्च स्टार्टिंग से भारत में, तो एकदम से भारत के लिए नहीं था। भारत बहुत अच्छे स्टेप ले सकता था इसके लिए, शुरू से अगर इसको कंटेन किया होता। चाइना के लिए, स्पेन के लिए, साउथ कोरिया के लिए, जापान के लिए। साउथ कोरिया और जापान ने बहुत अच्छे से हैंडल किया इसको। भारत में तो बहुत लेट आया। यस अस्मिता, भारत में तो तब आया तब 1 लाख के ऊपर केस हो चुके थे वर्ल्ड वाइड। तो ये एक बेनिफिट रह गया हमें, नहीं तो हम भी पता नहीं कहाँ होते, क्वारंटीन कर रहे होते अभी। इसका फायदा नहीं उठाया पर हमारी सरकार ने। यस अस्मिता, बस मैम आई एग्री। ओके चंदन, यू वांट टू से एनीथिंग? चंदन थोड़ा नर्वस लग रहा है। यस यस प्लीज से समथिंग। मैम चाइना में तो बेजिंग का नहीं हुआ है कुछ भी, कैपिटल में क्या कह रहे हो? नहीं हुआ है, एक भी केस नहीं हुआ। अभी की बात कर रहे हो? नहीं मैम, चाइना के कैपिटल में। यस स्नेहा, यू वांट टू से एनीथिंग? ये मैम और एक पॉइंट था कि जो ये सब आप मिसमैच बोल रहे हैं ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इट इज नॉट ऑडिबल टू मी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो है ना मिसमैच हुआ है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, कहीं पे कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रोक रही है सिटीजन का ट्रैवल एंड बैन कर रही है, कहीं पे कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो ये पॉलिटिकल ही है कि अभी भी हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कौन किसको नीचा दिखाएगा एंड कौन किसको पॉलिटिकल रैली में हम लोग बाद में ये करेंगे, हम लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे कि एक ग्लोबल या फिर बोल सकते ह्यूमन क्राइसिस आ चुका है हमारे, नहीं कर रहे वो लोग, वो अभी तक पॉलिटिकली है कि बाबा मेरा फायदा होगा, फिर मेरी पार्टी को वोट ज्यादा मिलेंगे, वो अभी तक इसी पे फोकस्ड है, तो वो एक बड़ा इशू आ रहा है बिकॉज़ they are collecting their vote banks. You want to say? Anybody else on this point? Yes ma'am. You want? Yes. Somewhere I agree with Sneha, जैसे कि इन्होंने बोला कि कुछ politicians अपने वोट बैंक की,
कलेक्ट करे जा रहे हैं, क्योंकि मैम कोई पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं मैम, थोड़ा सा राशन लेकर जा रहे हैं और क्या ऐसे गरीबों में बांट कर फोटो डाल रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में, दिखा रहे हैं कि हम लोगों के गरीबों की मदद करें। मैं उस चीज का क्या फायदा कि अगर आप ऐसे वोट बैंक इकट्ठे करोगे, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो खुले दिल से करो, ऐसे कि आप किसी को दे रहे हो फिर आप फोटो खींच के डाल रहे हो। नहीं देखो, अगर उन्होंने नहीं खींचा फोटो, किसी लोगों ने डाल दिया फोटो, तो फिर वो क्या कर सकता है इसमें? यस मैम, कैंपेनिंग है मैं हिमाचल का केस बता रहा हूँ, हिमाचल में हुआ था। अच्छा, मैं हिमाचल में, फिर मैं उस एसपी को पता लगा तो मैं एसपी ने फिर उसको झाड़ दिया था। इट हैपेंस। यस मैम। यस गौरव। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने बैन की है फोटोग्राफी। पहली बात तो वो कोई बैगर्स नहीं है जो जिनको खाना खिलाया जा रहा है, वो अपनी मेहनत करके खुद कमा के खाते थे अपना, ठीक है, भरोसे नहीं दो। टाइम ऐसा है कि उसकी वजह से उनको इस सिचुएशन में है वो, कोई पहले से ही भिखारी नहीं थे, तो उनका एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। वो केवल गवर्नमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट के लिए तो क्या अपना प्रचार है, वो तो करेंगे, वो फोटो नहीं खींचा तो उनको क्या फायदा। और भी जो कोई थोड़ी बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यही कर रहे हैं, उनका मेरे ख्याल से उनके लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए। यस अस्मिता, यू वांट टू से एनीथिंग? मैम वही है, पॉलिटिकल टैक्टिक्स ही है सब कुछ, टू गेन वोट्स, टू गेन सपोर्ट। बट इस टाइम तो पॉलिटिकली ऐसा नहीं होना चाहिए ना, दे शुड फोकस ऑन कि हम सब बच जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी मतलब ये तो बिल्कुल इनह्यूमिनिटी हो गया ना, लेकिन फिर भी लोग इसमें भी अपना फायदा ढूंढते ही है कहीं ना कहीं कि देखो हम डांस कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इवन सिर्फ फोटो खिंचाने की नहीं है यहाँ पे, मतलब वेस्ट बंगाल में ऐसे केसेस हुए हैं कि मतलब पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, अगर कोरोना वायरस से डेथ हो भी रहे ना, तो मतलब वो उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ पे सुना था मैंने कि डेथ हो रहे किसी विलेज में, एंड वो कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, लेकिन पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि अपना सही रखने के लिए वो किसी और रीजन से डेथ हो रहा है बोल के उसको छुपा रहे हैं। जैसे चाइना गवर्नमेंट ने भी किया, जो अभी काफी टाइम बाद डिस्क्लोज हो रहा है कि उनका नंबर ऑफ डेथ्स जो थी वो बहुत ज्यादा थी, 3300। तो मतलब मेरे ख्याल से वो तो लास्ट 24 आवर्स में हो जाती, 2 दिन में हो जाती होंगी ये यूएस में, जो उन्होंने अपना पूरा टोटल डाटा दिया। और उनका रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है, जो कि अदर कंट्रीज में तो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू दैट। तो चलिए ये टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन रहे हैं, बट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। सो आई होप कि आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा, एंड नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। रियली एंजॉयड। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम, बाय। सो आई थिंक कि आप सभी ने भी एंजॉय किया होगा, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ